जो कुछ बाहर हो जाए तो अंदर आ जाइएगा बाद में. Yes, so we'll analyze the various failure modes of knuckle joint, such as we did for the cutter joint, that is tension failure, shear failure, and compression failure or crushing failure. So let's understand, okay, what is knuckle joint. So this joint is used to fasten two circular rods, and here one end of the rod is formed into an eye end and the other into a fork end. So here the rod ends are modified into the eye end and the fork end. Fork end is a double eye end. And for making the joint, the eye end of the rod is aligned into the fork end of the other, and then the pin is inserted. Here, the member which is used to join this two eye end and the fork end is known as pin. And then the pin is inserted through the holes and held in position by means of a collar and a taper pin. So here a collar is also used and a taper pin is used to lock the knuckle pin into the joint. So once the joint is made, the rods are free to swivel about the cylindrical pin. Means here in quarter joint, if there is a slight rotation, then we cannot use that quarter joint. But here in the knuckle joint can be used where there is a slight rotation will be there. जहाँ पर rotation हो रहा है वहाँ पे भी हम उसको we can use this joint. So this is the advantage of this knuckle joint. So this is the joint. This is known as, this end is known as the eye end, and this end, that is the fork end, is known as the fork end, double eye. This is a double eye, and this member is a pin. This is known as the knuckle pin. ये knuckle pin है, and this is the head of the knuckle pin. And this knuckle pin is locked using a collar and a taper pin. So this is a collar and this is a taper pin. So this taper pin is inserted perpendicular to the axis of this knuckle pin, and this pin locked the knuckle pin into this eye end and fork end. This is these are the parts. This is the eye. Eye इस तरह से होता है कुछ. This is pin, knuckle pin, and this is the fork end. ये double eye. Here it is one eye and other eye. So fork के form में होता है. And this is the two-dimensional representation. This is the two-dimensional representation of this knuckle joint. So here, the diameter of the pin, this knuckle pin, is small d, and d1 is the diameter of its head, and do or d0 is the outer diameter of this eye. ये eye जो है और के eye का जो ये वाला है external, ये diameter है do. ठीक है, and this A is the thickness of this fork. जो fork है, इस fork की ये thickness जो है वो है A. So this is A, this is A, and the thickness of the eye end is B. ये B, ये जो thickness है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, this is B. ये B कहलाएगा. So and this is the radius R. This end is the fork. ये एक radius है. And this is the split pin or the taper pin. ठीक है, कॉलर में जो है वो इंसर्ट की हुई है ताकि पिन, ये जो नकल पिन है इसकी जगह पर रहे. So the applications of this knuckle joint are in the air brake arrangement of locomotives, joints between the tie bars in a roof trusses, joints between the links of a suspension bridge, joints in valve mechanism of a reciprocating engine, fulcrum for the levers, joints between the links of a bicycle chain. जो bicycle या मोटरसाइकिल जो होती है और जो हम चेन यूज करते हैं टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो चेन के लिंक्स है जो आपस में ज्वाइन होते हैं वो एक पिन के थ्रू ज्वाइन होते हैं. ठीक है, सो दैट इज टाइप ऑफ नकल जॉइंट. Now design of a knuckle joint. So here
let us assume that कि the material for the rods, जो दो rod हैं जिसको हमने form किया है in I end and in the fork end, है ना, वो और pin, इसका material same है. And the allowable stresses in tension, compression and shear, these are given by sigma t, sigma c and tau. Okay, so this is the allowable stress in tension, this is allowable stress in compression, and this is the allowable stress in shear. So this is the free body diagram of forces. जो fork में कौन से forces हैं, I में कौन से forces हैं, और ये I end में कौन से हैं. So to design the joint, first we have to understand the failure modes of the knuckle joint. So the following are the failure analysis of the joint. So number one, the tension failure of rod. कि जो rod है जिसको हमने end को fork में convert किया है और दूसरे end को जो है वो हमने I end में modify किया है. तो वो जो rod है initial, जिन दो रॉड्स को हमें ज्वाइन करना है, जिसके एंड को फॉर्म करके हम आई और फॉर्क एंड बनाते हैं, वो रॉड टेंशन में फेल हो जाए ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड पी. सो दिस इज द रिलेशन पाई बाय 4 डी आर. डी आर मीन्स द डायमीटर ऑफ रॉड. ठीक है, सो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी इज इक्वल टू पी. दिस इज द रिलेशन फॉर this tension failure of the rod. This is यहाँ से ये फेल हो जाएगा. Second one is tension failure of I end. So here the rod fails in tension, but the tension occurs at the slot. ये जो यहाँ पर होले यहाँ से कट हो जाए. So this is the tension failure of the I end. तो I end यहाँ से fail हो जाए. So this is the failure. So what will be the area of cross section? जो fail हो रहा है वो area of cross section क्या होगा? So the area of cross section is this. This is a I end के लिए बात करें, so it will be this distance multiplied by this distance. So this is given as d outer minus d inner. So d inner is the diameter of knuckle pin. knuckle pin का जो diameter, internal diameter इसका knuckle pin के diameter के बराबर होगा. ठीक है, और this is the outer diameter. ये इसका इनका outer diameter है. So d0 या do minus d और multiplied by this dimension यहाँ से लेके यहाँ तक है. So this is the area of cross section. इसको multiply के stress से. So we have this force. This is the applied force. This is the working force. Resisting. The next is tension failure of the fork end. जो fork end है, जैसे I end का यहाँ से fail हो रहा था tension, similarly fork end ये भी fail हो जाए. So the area of cross section is this. So it is do minus d. ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और this is the distance यहाँ से यहाँ तक का. Now here it is 2 times, क्योंकि fork का एक part ये रहा और fork का दूसरा ये रहा. So the area is taken as twice a do minus d. So into sigma t. This is equal to p. And shear failure of the pin. So knuckle pin जो है, that knuckle pin fails in a shear. Yes. So the part which is in the fork end में रह जाए, ये fork end में दूसरा रह जाए और ये I end में रह जाए, and the joint separates. So this is the failure, the sheared area. Okay. So the area is given as, it is pi by 4 d square. Okay. Pi by 4 d square. And since the pin is in double shear, यहाँ पर और एक यहाँ पर हो रहा है, so therefore it is 2. So 2 into pi by 4 d square
into tau is equal to P. Then compression failure of the pin in the fork. ठीक है, so pin ये पिन यहाँ पर इंसर्ट है और ये फॉर्क में है, इन दोनों के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर जो है दिस इज द प्लेस और दिस इज द प्लेस जहां पर पिन जो है वो कंप्रेशन में है इसके साथ. So compression failure, so this is the compression area is this crossing A into D. A is this dimension, यहाँ से यहाँ तक का, sorry, this is the dimension A, and this D is the diameter, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो, that is the diameter. जो pin the compression area is taken as the projected area. So when a cylinder is projected, we have a rectangle. So the rectangle area is this. So since it is 2, यहाँ पर है और यहाँ पर है. So therefore it is twice A D sigma C, that is equal to P. Then the compression failure of the pin in the eye end. Similarly, जैसे ये fork end में compression failure हो रहा है, यहाँ similarly this is the compression इनके बीच में यहाँ पर होगा और यहाँ पर ये वाला एरिया रहेगा, यहाँ पर सिलेंडर के अंदर जो है वो इंसर्टेड है. So that is given as B into D into sigma C. ठीक है, B into D into sigma C. B यहाँ पर ये डायमेंशन है ये वाला और D ये इसका. This is calculated. So this is the case. The next failure is shear failure of the eye end. So this is the case where shear failure कि पिन अंदर इंसर्टेड, आई एंड सेपरेट हो गया. सो कब सेपरेट होगा, जब ये वाला जो रेजिस्टिंग है यहाँ रेजिस्टेंस है ये बाहर निकल जाए पोर्शन, ये स्लॉट इंक्रीज हो जाए यहाँ तक, ये स्लॉट जो होल है ये होल इंक्रीज होकर यहाँ तक आ जाए, तब ये होगा. सो दिस इज हियर एंड दिस इज हियर. सो दैट इज गिवन एज ये कितना होगा, सो दैट विल बी DO माइनस D into this distance, यहाँ से लेके यहाँ तक ये distance. So that is B, क्योंकि I end है. For the fork, shear failure of the fork end, so DO minus D into A, fork की thickness. So fork में यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, तो एरिया जो है वो डबल होगा. So this is therefore 2 is there. Bending failure of pin. So if the pin is loose in the eye end or in the fork end, so bending may take place. तो जैसा हमने जो है वो what we did in the quarter joint में जिससे हमने एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस यहाँ पर करके we have the relation, that is कि eye end में है तो uniformly distributed और fork end में तो we have taken a triangular distribution between the pin and the fork. So here this is the bending moment in the pin, further simplified, and this is the moment of inertia of the pin, pi into d to the power 4 by 64, and this is the distance. ये हम put करेंगे और bending stress वाली equation में. So we have sigma b is equal to mb into y upon I. So this is the bending moment into y upon I. और इसको simplify जब हम करेंगे तो we'll have this relation for the bending moment. This is the final relation. So this we check finally. ये bending stress जो है finally हम check लगाएंगे कि pin जो है वो bend तो नहीं हो रही है. तो this is our relation 16p upon pi d cube into bracket में b by 4 plus a by 3. This is the relation. So these are all the this is the failure analysis of the knuckle joint. So the joint is simple. So we have these equations. हम यहाँ से क्या करेंगे? We'll determine what we have to do is we have to determine these dimensions. The dimensions हमें यहाँ पर निकालना है. That is the diameter of the rod, then the diameter of pin, and the outer diameter of this eye end and the fork end, thickness of the eye end,
thickness of the fork end, and this, okay, and then finally we have to take the bending of the pin. Okay, so this is a problem. This is the problem. So you note this problem and try to solve it. अभी हम इसको solve करेंगे, ठीक है? जो हमारी equations है, उन equations में से आप solve करें. There are multiple equations for the same parameters. ठीक है? तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब कि दो रिलेशन या तीन रिलेशन है सेम पैरामीटर्स के लिए, मतलब उन रिलेशंस में सेम पैरामीटर इन्वॉल्व करेंगे. तो हम उस केस में क्या करेंगे, आइदर या तो एक इक्वेशन से वो पैरामीटर निकाल लें, दूसरी और बाकी दूसरी इक्वेशंस में वो पैरामीटर्स पुट करें और वहां से वर्किंग स्ट्रेस निकाल लें और उसको हम चेक कर लें, या तीन इक्वेशन है तो तीनों में से हम वो पैरामीटर निकाल लें सिंगल, और जो हाई जो उसमें मैक्सिमम होगा वो पैरामीटर हम अडॉप्ट कर लेंगे. ठीक है, तो आप जस्ट डू इट, सॉल्व करें अभी. Let us solve this problem, huh? Please. बताते जाएं मुझे क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं. Now 40 kilonewton is the load, and what about the So step one is first, स्टील जो है स्टील का बना हुआ है. So please tell me sigma t, sigma c and tau for the steel. स्टील में कौन सा लेंगे मटेरियल, चूज करके मुझे बताएं. सर प्लेन कार्बन स्टील. प्लेन कार्बन स्टील लेओगे, ले चलो बताओ उसकी ये सिग्मा टी सिग्मा सी और टाउ कितनी है. सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें कैसे कंसीडर करेंगे सर? देखो यदि आप यील्ड स्ट्रेंथ लेते हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा. फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी कैन यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 to 6 इन नक्कल जॉइंट. सर इतना हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों यूज करते हैं नकल जॉइंट में? दैट वी कैन यूज, ले सकते हैं. इफ लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिपेंड करता है कि जॉइंट कहां पर यूज हो रहा है. तो जहां पर यदि हम ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व करेंगे तो वहां हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे. जैसे ब्रिज में सस्पेंशन यदि हम बनाते हैं और वहां पे यूज करते हैं इसको, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज द हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसलिए हैव यू सीन दिस इन ब्रिज? आप लोगों ने कभी ध्यान दिया? शॉपिंग मॉल्स में विजिट किया आप लोगों ने? सर तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन मीन लेंगे 4 और 6 को ना 5 लेके यू चले. कैन स्टार्ट विद द 4. अभी हमारे जॉइंट में वो नहीं है, अभी इसमें एप्लीकेशन नहीं है कि कहां पे यूज करना है. ठीक है, अभी हमारे प्रॉब्लम में नहीं है कि हम किसके लिए जॉइंट डिजाइन कर रहे हैं. अभी एप्लीकेशन नहीं मालूम है आपको, तो अभी हम मिनिमम वाला लेके चलेंगे.
टीआई या जो है वो योर व्हाट, कौन सा मॉल है यहाँ इंदौर में? और वन इज टीआई एंड अनदर वन इज दैट मल्हार मेगा और C21 मॉल. हैव यू विजिटेड? आप लोगों में से कोई गया वहां पे? यस सर। सो वो जो ब्रिज है क्रॉस करने का वहां पे, कभी उस पर ऑब्जर्व किया है? हाउ दैट ब्रिज इज कनेक्टेड? ब्रिज कनेक्टेड है रोप के साथ में. वो रोप जहां पे एंड वन एंड जो कनेक्टेड है वहां पे पिन लगी हुई है. यस सर। तो कभी सोचा उसमें कि ये पिन यहाँ क्यों लगी और कितना किस टाइप का जॉइंट यहाँ पर होगा? नहीं सोचा ना. सो आई मतलब सजेस्ट यू कि जब भी आप कहीं पर भी एनी अराउंड आप कहीं पर भी देखें, ये आपके पास में जो व्हीकल है, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द पार्ट्स जो इसमें यूज हो रहा है. तो आपकी जो डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होगी. Yes, Sir, tell me sigma T, sigma C and tau. Sir, if we take plain carbon steel and the factor of safety equal to 4, we'll get sigma T equal to 100 Newton per mm square. Plain carbon steel. Okay, plain carbon steel. Factor of safety is 4. So sigma T कितनी हुई? So 100 Newton per mm square. 100 Newton per mm square. Sigma C is also the same, sir. मतलब it will be same for tension and compression. Yes, sir. But in case of steel ये जो है वो twice होती है. Okay, tau. So 50. 50, sir. Compression में डबल होती है स्टील के केस में. So better you take it 200. और 200 नहीं लेना तो you can take 120 और 110 और 140 और 150. So आप सिग्मा टी और सिग्मा सी 100 का मतलब ये हुआ कि the joint is equally strong in tension and compression. ठीक है? That's the meaning of this 100. So okay. सर नॉर्मल अगर हम लोग कभी भी नकल जॉइंट यूज करेंगे तो सिग्मा सी हैज टू बी ग्रेटर देन सिग्मा टी स्टील में. हाँ, but you can yes you can take, but you can also use this value. It means कि the joint is strong in tension and compression both. ये मतलब हुआ इसका. So no issue. So ये हो गई. This is the allowable stresses or the permissible stress of material. ठीक है? The load is 40 kilonewton. This load is 40 kilonewton. ठीक है? So let's find out. So number one, diameter of rod. Diameter of rods. So that is D R. So that is the tension failure. So it is pi by 4 dr square into sigma T is equal to P. So dr square is equal to P upon sigma T into 4. यहाँ आ जाएगा, सॉरी नीचे पाई आएगा, यहाँ आएगा 4. So dr is equal to square root of this 4 times P upon pi times sigma T, and that is equal to 4 into 40,000 Newton upon my pi into 100. So this will be in mm. So dr is equal to कितना आ रहा है? जस्ट कैलकुलेट करके बताइए. 22.573. 32.57. 22.56. So 22.59. ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो दिस इज वन रॉड का डायमीटर हो गया. नाउ वी हैव द रिलेशंस. देखिए हमारे पास में जो रिलेशंस हैं, so this is done. Now can we use this relation? Tension failure of the IN.
B, DO minus D. So इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, देयर आर 3 पैरामीटर्स, तीनों नहीं मालूम, सो अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते. टेंशन फेलियर ऑफ दाई एंड एंड सिमिलरली टेंशन फेलियर ऑफ द फॉर एंड, यहाँ पर भी 3 पैरामीटर है. Then shear failure of pin. So we can use this क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर इन्वॉल्व है. ठीक है, so we'll determine this. So it will be 2, it is d square is equal to 4p upon 2 pi into tau. So d is equal to square root of this 4p upon 2 pi tau. So this is equal to 4 into p is 40,000 1 by 2 5 into tau is 50. So this will be in mm. So this is equal to इसको कैलकुलेट करो. सर डी तो अपन ने पहले ही निकाल लिया ना. हाँ. ठीक. हाँ. मैं इन्फॉर्म कर दूंगा. हाँ पूछ लें, 6 बजे पूछ लें. यस, क्या वैल्यू आई? Sir, 40. 40. Yes, sir. 40 point something या 40? Sir, exact 40. Exact 40. Okay. चलो. So the diameter of knuckle pin is 40 mm. ठीक है. So this is calculated now. Consider also the compression failure of the pin in the fork, so that we can know A, है ना, क्योंकि ये पिन का डायमीटर है और A ये इन्वॉल्व कर रहा है थिकनेस ऑफ आई एंड, फॉर्क एंड की थिकनेस, सॉरी A. सो इस इक्वेशन को यूज कर लो, so that you have the value of the fork thickness, fork end thickness. Sir, This is P. हाँ. sir, one doubt. Sir, D क्या लेंगे इसमें? किसमें? सर इसमें D की वैल्यू क्या लेंगे, जो फर्स्ट में निकाली थी या जो अभी निकाली है? फर्स्ट वाली तो रॉड का डायमीटर था. तो सर That D is की वैल्यू DR. 40 रहेगी. हाँ, वो DR था, हमने लिखा था ना DR. ये D है, पिन का डायमीटर. ठीक है, ये जो 40 mm हमने निकाली ना, ये वैल्यू रखना. दिस इज द डायमीटर ऑफ द पिन. नकल पिन का डायमीटर ये है. So A is equal to P upon twice D sigma C. ठीक है. So here you will have this 40,000 1 by twice into 40 into 100. So 40 and 40 cancel out. Sir, this D 100 is 100. different, sir. सर D 22.57 आ रहा है. Yes, sir. हाँ वही तो सर, Yes, डिफरेंट कैसे आ रहा है डी? Sir, 22.5. देखो यार, चेक करो ना जस्ट. नो सर, calculation 40 is इस wrong. इक्वेशन से डी की वैल्यू 22.57 ही आ रही है, जो अपन ने पहले निकाल चुके हैं. चेक करो भैया इसको. Yes, sir, it is 22.57. Sir, actually it is 22.57. Yes, sir, 22.57 ही आ रहा है सर. Oh, हाँ, तो फिर 40 कहाँ से आ गई? sir, actually I have not taken pi. अच्छा, पाई नहीं लिया, ठीक है. सो प्लीज कैलकुलेशन जब भी करो ना, क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए उसको. हाँ, ठीक है. सो इट इज 22.57 ना. सो हियर इट विल बी 22.57. सो दिस ए विल बी इन mm. इसकी वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा. $2,000 divided by 2.
यस कितना है ये? सर 4.43 समथिंग आ रही है अगर अपन सिग्मा सी 200 लेके चले तो। 200 से 4.43 आएगा, और अगर 100 लेते हैं, हमने 100 लिया ना स्टडी। सर 8.861 अगर 100 लेते हैं तो 100 से 8.86 बना रही है, ठीक है। सो वी हैव assume that the joint is equally strong in the shear and compression, ठीक है। So it is 8.861. Now similarly find out the dimension this B, compression failure of the pin in the I end. तो I end की भी thickness निकाल लो, so that B तो मिल ही जाएगा ना। So for B is equal to P upon D sigma C. So P is 40 upon D 22.57 into 100. So this will come out 17.72। 17 पॉइंट आएगी, डबल हो जाएगी ना इसके ए के 17.72 17.72, ठीक है। सो ये 17.72 mm आ गई, ए आ गया, बी आ गया। नाउ व्हाट वी हैव, लेट्स फाइंड आउट दिस डी आउटर, यही बचा है आई थिंक। फाइंड आउट फ्रॉम हियर, यहां से you calculate this D0. So it will be DO is equal to it will come out D plus P upon में B into tau. DO इतने टाइम्स इसमें इतना बड़ा होगा, ठीक है। So it will be 22.57 plus this P upon में B कितना है 17.72 into tau is 50. So this will also be in mm. सर 67.71 67.71. 71 Others, please confirm this. Cross verify. Yes, sir. yes sir 67 यस sir. सर। Okay. Okay. So this value is okay. ठीक है। Now, any other parameter जो इन इक्वेशन से कैलकुलेट करना हो वो बचा है क्या? देखो वन Diameter of pin head. दैट इज द एम्पिरिकल रिलेशन, वी कैन वहां से एम्पिरिकल रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो पिन हेड का डायामीटर है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पिन हेड फॉर्क के साथ में कंप्रेशन में है, ठीक है ना। सो यू कैन फाइंड आउट कंप्रेशन फेलियर बिटवीन द टू, वहां से हम ले लेंगे। या पिन के एम्पिरिकल रिलेशन में हम वी कैन फाइंड आउट द हेड डायमीटर फ्रॉम द डेटा बुक, डेटा बुक में से हम निकाल सकते हैं। बट वी हैव अदर इक्वेशंस आल्सो, जैसे ये इक्वेशन हमने यूज की, बट इस इक्वेशन को हमने यूज नहीं किया। टेंशन फेलियर ऑफ द आई एंड, हमारे पास में डी आउटर है, डी इनर है, पिन का डायमीटर बी है, और ये टेंशन फेलियर ऑफ द फॉर्क एंड, ये इक्वेशन भी हमने यूज नहीं की क्योंकि हमें ये तीनों पैरामीटर मिल गए। फिर this equation we have used, this equation we have used, this equation we have used, और shear failure ये इक्वेशन यूज की हमने, यहां से हमने DO निकाला।
shear failure of the fork and ये यहाँ पर भी A D O इन्वॉल्व कर रहा है और फाइनली बेंडिंग फेलियर ऑफ पिन है, ठीक है। तो उसके पहले हम लेट्स फाइंड आउट एक तरीका तो यह है कि DO इन इक्वेशन से भी हम निकाल लें। जैसे अभी हमने इस इक्वेशन से DO की वैल्यू ये निकाली, इस इक्वेशन से भी हम DO निकाल लें, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को यूज करो और DO यहां से भी निकाल के बताओ। और फिर जो टेंशन फेलियर है इस इक्वेशन में से भी आप DO निकालो, और फॉर्क एंड का जो टेंशन फेलियर है यहां से भी DO निकालो। समझ में आया आपको क्या करना है? You got it? What I said? सर सेम इक्वेशन बन रही है ये। सेम इक्वेशन है, बट वन इज इन टेंशन, अनदर वन इज इन शियर, अनदर वन इज इन कंप्रेशन, ठीक है। दिस इज इन टेंशन, यहां पर B है, दिस इज इन टेंशन, यहां पर A है। तो फर्स्ट यू कंसीडर द टेंशन फेलियर ऑफ I एंड ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन से DO की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को, यहां से फाइंड आउट DO फ्रॉम हियर। सो हियर DO is equal to D plus P upon B into sigma T। ये वही रिलेशन है क्या जो जिससे अभी हमने निकाली? B equals to 2A Yes. है ना। बट यहाँ shear स्ट्रेस थी, वहां पे सिग्मा टी है। ये क्रॉस सेक्शन शेयर को रेजिस्ट करेगा जो भी 67.7 आया है। तो टेंशन फेलियर को सपोर्ट करने के लिए DO कितना चाहिए वो यहां से निकलेगा। तो यहां से कितनी आ रही है? बट B की कितनी वैल्यू आई थी? 17.7। सर 45.14। यस सर 45.14। यहां से आ रही है 45.14 mm, ठीक है, नो इशू, ठीक है, निकाल लो। अब यहां से भी निकालो फ्रॉम दिस इक्वेशन। सर सेम वैल्यू 45.14। A 8.61 है और इंटू 2 है तो 17 पॉइंट, हाँ ये सेम आएगी। दिस विल आल्सो बी 40 कितनी थी 5.14, ठीक है 45.14 mm यहाँ से, ठीक है। टेंशन में मिनिमम इतना चाहिए D आउटर। सो ये दोनों इक्वेशन हो गई। देन सर 33.858 आ रहा है बी कौन नॉट से टेंशन फेलियर के लिए। टेंशन फेलियर यस सर। फॉर्क में? यस सर। चेक करो एक बार। सर इसमें टाउ जो 50 है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा टी हो जाएगा। वो तो जो अपन ने शेयर फेलियर फॉर आई एंड से निकाला था उसका बाय 2 कर देंगे। नहीं देखो यहाँ पे नहीं। सिग्मा टी 100 है सॉरी सर गलत। और सॉरी ये सर। 17.2 है ना, ये देखो सिग्मा टी है यहाँ पे। फॉर्क एंड और आई एंड इन दोनों रिलेशन में सेम आएगा क्योंकि यस B, सर गलत कर रहा था। हाँ B 2A के बराबर आ रहा है इसलिए। तो इन दोनों से भी निकाली, टेंशन में इतना चाहिए DO, D आउटर, D नॉट, और अब कौन सी क्वेश्चन बची? यहां से निकाल लिया है शेयर फेलियर ऑफ द फॉर्क एंड, यहां से भी निकालो। सेम आएगी, ऊपर वाले के सेम आएगी।
b upon twice a into tau. ट्वाइस a मतलब b हो गया, ये b ऊपर वाला ही हो गया, यहां से भी आएगी, इट विल कम आउट 67.71 सेम आएगी, जस्ट क्रॉस चेक कर लो। Yes, sir. Same. तो अब देखो डी नॉट या डी आउटर, हाँ, सो डी नॉट यहां से निकला, यहां से निकला और टेंशन फेलियर में भी निकला, ठीक है, वहां से भी हमने वी हैव कैलकुलेटेड दैट डी नॉट, ओके। नाउ so d naught value, one value is from tension point of, it is coming out 45.14 mm, and from shear it is coming out 67.71 mm. Now which one we have to adopt? This is from tension failure criteria, this is from shear failure criteria. Tension failure. So from this two value, which value we have to use? दो वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करेंगे? So here we will adopt the larger of these two values. The reason is कि 45.14 mm is the minimum value which is required in tension failure. कि tension failure ना हो उसके लिए इससे कम वैल्यू नहीं चाहिए 45.15. Larger can be used, and here to prevent shear failure, this is the minimum value 67.71. इससे कम नहीं चलेगी, इससे ज्यादा हम ले सकते हैं। So इससे कम नहीं होना, इससे कम नहीं होना, तो इट मींस इससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है। सो दिस वी विल अडॉप्ट दिस 67.71, ये वैल्यू हम अडॉप्ट कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारे डी नॉट या डी आउटर की वैल्यू 67.71 होगी, ठीक है। नाउ चेक द बेंडिंग फेलियर ऑफ द पिन, नकल पिन का बेंडिंग फेलियर चेक करो। So this is the relation for the knuckle pin here. So this is equal to 16 into this upon pi into d cube, knuckle pin कितनी 22.57 था, yes का cube, and this is b is 17.72 by 4 plus a 8.861, this is by 3. So calculate this sigma b. So this is coming out 4.43 plus 8.61. सब नियरली 131 के इक्वल आता है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, प्लीज अदर्स में वेरीफाई 2.95 and this is about 16.
So 130.88. ये इसमें डिवीजन रह गया है, इसका स्क्वायर का मैंने किया। पॉइंट 76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 130.81. ठीक है, 130.81 is also okay, no issue. Means it is this sigma b is greater than sigma t allowable. ठीक है, so the joint is fail, pin will bend, पिन का बेंडिंग हो जाएगा, so we have to redesign this. ठीक है, हमें जॉइंट को रिडिजाइन करना पड़ेगा, तो इसको रिडिजाइन करना है जॉइंट को। यस तो कैसे हम रिडिजाइन करेंगे? मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। मटेरियल चेंज करना, फॉर द सेम मटेरियल व्हाट वी डू? सर डायमेंशंस इंक्रीज कर देंगे। यस, नाउ ऑब्जर्व हियर, यहां पर क्या करें कि सिग्मा भी कम हो जाए। दिस इज कांस्टेंट, द लोड इज सेम, है ना? नाउ कैन वी चेंज दिस बी? सिंस बी यहां पर देखें तो इट इज इन न्यूमरेटर पार्ट में, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो बी को हम कम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिड्यूस बी, क्योंकि वो जो वैल्यू आई है दैट वैल्यू इज मिनिमम। हियर ए, इसको भी वी कैन नॉट रिड्यूस, ए और बी को हम कम नहीं कर सकते। नाउ व्हाट अबाउट दिस डी? वी कैन रिड्यूस डी। सर पिन की डायमीटर चेंज कर देंगे। इफ वी रिड्यूस डी, डी को कम करोगे तो इट विल इंक्रीज, डी विल इंक्रीज, वी कैन नॉट रिड्यूस डी। सॉरी सर, वी विल इंक्रीज डी। डी को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट 67.71 इज द मिनिमम वैल्यू, उससे कम नहीं हो सकती। सो एंड दिस इज आल्सो इन डिनोमिनेटर, तो यदि हम इस डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। ठीक है, सो मींस वी हैव टू इंक्रीज डी। अभी डायमीटर ऑफ द पिन को इंक्रीज करना है, तो कितना करें? तो कितना करें? तो व्हाट यू कैन डू कि आप इसको लिमिटिंग कंडीशन में ले लो, मींस यू पुट सिग्मा बी एज 100, सिग्मा टी के बराबर ले लो, ये लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी हमारी। सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा टी अलाउेबल, ये हमारी लिमिटिंग कंडीशन हो गई। तो आप सिग्मा बी की जगह यहां पे सिग्मा टी रखो एंड फाइंड आउट डी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, फाइंड आउट डी फाइंड आउट कर लो यहां से। पिन का डायमीटर कितना आ रहा है? सर 24.68। So 24.688 mm. क्रॉस चेक करो भैया बाकी लोग इसको वैल्यू को कि 24.688 mm आ रही है वैल्यू, क्रॉस चेक करके बताओ।
Yes, sir. 24.6. ठीक है, सो कंफर्म करें इसको कि दिस वैल्यू इज करेक्ट 24.688. Yes, sir. 24.88. So done. Okay, done. So this is the minimum value which is required, है ना, ताकि बेंडिंग ना हो. ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है. यदि इससे कम होगा तो बेंडिंग जरूर होगा. इससे ग्रेटर वैल्यू वी कैन यूज. सो नाउ जो डी की वैल्यू है, वो डी की वैल्यू अब आपकी हो जाएगी ये वाली 24.688 के करस्पॉन्डिंग. अब बाकी वैल्यूज आप चेंज करो. मतलब समझ में आया आपको क्या करना है? डी इसको ले लो एंड देन नाउ फाइंड आउट DO करस्पॉन्डिंग टू दिस. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग डी आउटर कितना होगा या डी नॉट कितना होगा वो निकाल लो. सर ए निकाल लो और बी निकाल लो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर अपन डी चेंज हाँ. करेंगे तो फिर उसके कारण ए और बी भी तो चेंज हो जाएंगे, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब बी और ए तो कम वही तो हो बोल रहा जाएंगे. हूं ना. और कम नहीं लेना, बी और ए. आप इन वैल्यूज को चेक कर लो. कैसे चेक कर लो? आप डी आउटर निकाल लो. ठीक है, और उसके बाद में बी और ए जहां इन्वॉल्व है जिन जिन इक्वेशन में, यू फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग वर्किंग स्ट्रेसेस. वर्किंग स्ट्रेसेस, वो वर्किंग स्ट्रेसेस अलाउएबल से कम है तो ये वैल्यूज चल जाएंगी. नहीं तो आप यू recalculate the values of DO, B, A corresponding to this D 24.688. ठीक है, दिस इज द डिजाइन प्रोसीजर फॉर नकल जॉइंट. अदर पैरामीटर जो हैं, जैसे इसमें इस जॉइंट में ये जो रेडियस है, दिस एम्पेरिकली यू कैन फाइंड आउट कितना होगा. एम्पेरिकल रिलेशन डेटा बुक में से आप ले सकते हैं. एंड दिस द D1, ये पिन का हेड का डायमीटर, you can use empirical relation for this, for collar also and for this split pin also, or you can analyze the failure mode of this collar और ये जो पिन split pin, ये जो टेपर पिन है वो ये इसका एनालाइज कर लो कि ये इसके साथ में यहाँ पे कांटेक्ट में है. so there will be a compression between these two, तो वहां से you can find out this D1 also. ठीक है ना. जस्ट मुझे बता दो कि डी को जो हमने इसको चेंज किया 24.68, उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ए, या व्हाट यू विल डू, यू फाइंड आउट दिस सिग्मा सी. जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें, इन दिस इक्वेशन डी आपने जब यहाँ पे 24 जो नी वैल्यू से 24.866 आई है, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे, और ए की वैल्यू वही है जो पहले थी. यू फाइंड आउट दिस सिग्मा सी. ये तो यहाँ पर ये सिग्मा सी वर्किंग मिलेगा. ये सिग्मा सी वर्किंग यदि अलाउएबल से कम है तो ये वैल्यू जो हमारी है ए की पहले वाली, वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है. ठीक है. सिमिलरली यहां से भी यू फाइंड आउट सिग्मा सी, तो जो बी की वैल्यू पहले वाली है हमारी, वो चेक हो जाएगी.
यहां पर भी यू कैन फाइंड आउट shear स्ट्रेस, ये shear स्ट्रेस वर्किंग निकाल लो, यहां पे भी shear स्ट्रेस वर्किंग में निकाल लो, ये वर्किंग, और इसको गिवन जो अलाउबल है उससे चेक कर लो। ठीक है, किया आप लोगों ने? किसने? एनीवन जिसने किया? सर हाँ सर अगर डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू निकालिए तो? डायरेक्टली वहां से ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो डी वहां पर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डी इंक्रीज हुआ है तो ए की वैल्यू कम बताएगा वो। यस ठीक सर। है, हाँ सर, ए तो और कम बी को हम वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। ए जैसे और बी को फॉर एग्जांपल, एक मिनट में हम बता देता हूँ आपको, कर लेते हैं हम, समझ में आ जाएगा अभी हमको क्या। जैसे इस इक्वेशन में है ना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली यदि हम लें तो ट्वाइस ए डी सिग्मा सी इज इक्वल टू पी, यदि हम इस इक्वेशन को लें है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए इज इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस डी सिग्मा सी, ये हमने रखा। तो यहां से अब क्या होगा, ये डी बड़ा है तो ए की जो वैल्यू है वो अभी कम आएगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। कितनी आई अभी? अभी समझा सर देता हूँ। 8.1। 8.1 mm, ठीक है। नाउ दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इससे कम नहीं होना, इससे ज्यादा वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने जो कैलकुलेट की है वो कितनी है? 8.86। 8.861, मतलब दिस वैल्यू इज ओके, हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज द मिनिमम, इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज्यादा चल सकती है। तो जो हमारी पहले वाली कैलकुलेटेड वैल्यू है, सिंस वो ज्यादा है तो ये दिस वैल्यू इज अवर ओके, ये हमारी वैल्यू ओके। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर, समझ तो आया, लेकिन सर दोनों केस में फिर यही होगा ना, जो वैल्यू निकलेगी सेकेंड टाइम वो तो कम ही आएगी। हाँ, तो जो हमने पहले कैलकुलेट की है वो वैल्यूज हमारी ओके है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू हमारी चेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट वैल्यूज आर ओके। सर पर अगर देखा जाए तो हमें करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अगर हमने डायमीटर से लिमिटिंग कंडीशन निकाल ली है तो सर फिर हमको तो ए और बी की वैल्यू चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ सर पर अगर अपन ए की नहीं वैल्यू करो चेंज ना, नहीं करते हैं नहीं करो, सर, यू डोंट अगर चेंज द वैल्यू ऑफ ए, जस्ट समझो इसको, यहाँ पे दूसरा तरीका इसका कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस ए, ठीक है, सिंस डी यहां पर चेंज हुआ है, देयर इज अ चेंज इन द पैरामीटर, तो व्हाट यू डू, यू फाइंड आउट दिस, कि यदि हम डी की वो वैल्यू लेते हैं, है ना, सिंस हमारे पास में ये वैल्यू नोन है, ये क्रॉस सेक्शन नोन है ए और डी, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा सी वर्किंग यहां से निकाल लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू पी अपॉन ट्वाइस ए डी, ये हो जाएगा। और ये वैल्यू को चेक कर लो आप, फाइंड आउट सिग्मा सी वर्किंग, सर 91.242 आ रही है। कितना? 91.242। 91.242, इसका मतलब क्या हुआ? सर वर्किंग नहीं है, मतलब ये मतलब जॉइंट इस पे भी काम नहीं कर सकता अगर अपन ए की वैल्यू ये रखेंगे तो। नहीं, सिग्मा सी वर्किंग इज लेस देन द सिग्मा सी अलाउेबल, मीन्स द वैल्यू इज सेफ। डी यहां पर हमने 22 की जगह 24 रखा, तब हमने सिग्मा सी इतनी निकाली। सो सिग्मा सी जब तक जो अलाउेबल है उससे कम रहेगी तब तक ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है ए और डी दोनों की। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ए की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? 8.861, दिस इज एक्सेप्टेबल। एर डी की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है?
24.56 या 500 mm, यही है। ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब ये है। ये अगर डी की जो वैल्यू 22 ये जो 24.51 ये यहां पर रखने से ये बढ़ जाती तो वो नॉट एक्सेप्टेबल थी, लेकिन ये कम है इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। द जॉइंट विल नॉट फेल, क्योंकि वर्किंग हमेशा कम रहेगी, सिग्मा सी वर्किंग हमेशा कम रहेगी इसका मतलब। ठीक है, चलो सर हम लोग पहले यही चेक कर लें कि डी मतलब डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अलाउबल है, उसके बाद ए और बी निकालें, क्योंकि वो तो these are, हाँ लेट मी एक्सप्लेन कि these are two approaches. वन इज कि वहां से एक पैरामीटर की वैल्यू ली हमें, वो पैरामीटर जिस इक्वेशन में यूज हो रहा है दूसरी वाली, उसमें उस पैरामीटर का रखो और वहां से वर्किंग निकाल लो। यदि वर्किंग कम है तो दैट वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, वो उस मोड में भी एक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, दीज आर द टू अप्रोचेस। सर अपन पिन की डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो अपने को 4 कैन में जैसे अपने पिन को फिक्स करना है तो उसकी तो बढ़ानी पड़ेगी ना? किसमें बढ़ानी पड़ेगी? अपन वहाँ फिक्स करते हैं 4 कैन में। नहीं चलो, अच्छा मैं आपको अब ये समझा देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन इन अनदर वे। जो पिन की एक वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिलेगी, दैट इज द शियर फेलियर ऑफ पिन। ठीक है, एग्रीड? Yes, और इसकी दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी यहां से, यहां से, फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, तो पिन की आपके पास में यू विल हैव टू वैल्यूज। अब पिन की आपके पास में दो वैल्यूज होंगी, बराबर? yes sir. Now this is the minimum value which is required to resist bending. This is the minimum value required to resist bending, and this is the minimum value required to resist shear failure. ठीक है, मींस 22.57 से कम की वैल्यू नहीं होनी चाहिए shear फेलियर से बचना है तो, और बेंडिंग फेलियर से बचना है तो इससे कम वैल्यू नहीं चलेगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू विच सेटिस्फाई बोथ दिस क्राइटेरियाज? इन दोनों क्राइटेरिया को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? टेल मी। सर बड़ी वाली 24 वाली बड़ी वाली बेंडिंग। सो दैट्स व्हाई विल अडॉप्ट दिस वैल्यू। तब हम इसको इस वैल्यू को यूज करेंगे। नाउ इट इज क्लियर? और डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर हो गया सर? बोलो। सर एक अप्रोच है जिससे सर अपन ए Yes. और बी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कब? सर आफ्टर, मतलब जब डी को चेंज, डी हमने चेंज किया 24.68 और फिर हम ए और बी को निकालते हैं। हाँ सर एक अप्रोच ये है कि अपन ए और बी को निकालते हैं, एंड सर सेकंड अप्रोच इज मतलब सिग्मा सी वर्किंग निकालना है। देखो उसमें यह है कि यदि हम ए और बी की वैल्यू को चेंज ना करें, जो हम पहले निकाल चुके हैं वही वैल्यू हमको यूज करना है, इन दैट केस वी विल डिटरमाइन वर्किंग स्ट्रेसेस देयर। ठीक है,
उस केस में हम वर्किंग स्ट्रेस वहां पे निकालेंगे, ये चीज है। ओके सर। ठीक है, अगर आप चाहते हो डी की नई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ए और बी मिले आपको, तो फिर आप ए और बी वहां से निकालो। अदरवाइज आप सिर्फ एक ही पैरामीटर में चेंज करना चाहते हो जिससे सारे इक्वेशन, सारी स्ट्रेस की इक्वेशन, सारे फेलियर सेटिस्फाई हो जाएं, सो यू हैव टू चेक दैट। फिर आपको चेक करना पड़ेगा जो अभी हमने जैसा किया। ठीक है, कि हम ए पहले निकाल चुके हैं, बी पहले निकाल चुके हैं, डी आउटर पहले निकाल चुके हैं, है ना, हमें उनको चेंज नहीं करना है। तब उस केस में आप ये वाली डी की वैल्यू उन इक्वेशंस में पुट करो और वहां से वर्किंग स्ट्रेसेस निकाल लो। यदि वो वर्किंग स्ट्रेसेस अलाउबल स्ट्रेसेस से कम आती हैं तो वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दिस इज सिंपल अप्रोच। ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सर डी आउटर और भी किसी चेंज को कुछ होगा ना पूछना हो, इसके समझ में बाद? लिया हो? सर डी आउटर भी चेंज होगा ना? हाँ, सर डी आउटर, डी ओ, डी आउटर ये हाँ आप सर। आप चेक कर लो। हाँ, यू कैन चेक कि डी ओ को भी चेंज करना है या डी ओ की वही वैल्यू लेना है। तो जो अपन ने पहले निकाली यदि थी उससे हमें डी, कम आएगी तो गलत होगा वो। हाँ गलत होगा तब वो आप चेक कर लो, आप उसमें से निकाल लो इस डी के करस्पॉन्डिंग, यू फाइंड आउट डी आउटर। वो पहले वाली, यदि हमारी पहले वाली वैल्यू उससे कम आती है तो यू कैन जस्ट आप ये करो कि ये डी की वैल्यू पिन की उस इक्वेशन में जिसमें डी ओ आ रहा है उस इक्वेशन में पुट कर दो, तब आपको पता लग जाएगा कि डी ओ को चेंज करना है या नहीं करना है, क्योंकि वहां से वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगी। let me सर let कम me ही आ tell रही है। सर कम आ रही है सर। यस सर, you, 49 आ रही चेक है। कर लेते हैं इसको। कैसे चेक करेंगे कि ये डी 24.688 है ना, कहाँ पे रखी है कर लेते हैं ना, ताकि किसी भी तरह का डाउट ना हो। जैसे ये इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ तो यहाँ आप क्या करो, बी आपको रखो कितना था 17.72 इंटू डी आउटर कितना आया था पहले 7.71 माइनस डी, डी 24 पॉइंट कितना दिया? मैंने पहले 40,000 फिल की थी, भरी थी सर, उसके बाद मैंने 43 ही भर दिया, तो अभी मैं पूरी फीस भर चुका हूं, पर सर मैंने फीस बाद में भरी थी फॉर्म भरने की। यस सर, मैंने मतलब आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रहे, फट रही है सर। वो मैंने फीस बाद में भरी थी, फॉर्म भरने के बाद में फीस भरी थी सर। मेरे पास है सर, पर मैं फीस का कहाँ क्वेश्चन भाई, वो प्लीज अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इस पे ध्यान दो, कंसंट्रेट ऑन दिस प्रॉब्लम। फीस पूरी नहीं भरी है तो क्या मैं फॉर्म भर? उसका स्पीकर ऑन हो गया, यू कैन म्यूट हिम। यस सर, मैंने पूरी भर दी। हाँ, तो म्यूट करो। यस सर, अभी वो रसीद बोलो, एक ही म्यूट हो दी गया है सर, वो जो उसकी मतलब डीडी का है वो मैं मेरे सर वो कॉल पे है शायद दूसरा। सर आप म्यूट कर दीजिए उसको। अरे तो भाई क्लास, सर एक तो मैंने जमा की है सर, दूसरी नहीं की है मेरे को ही करना पड़ेगा सर। डीडी से की है सर। कॉल क्यों रिसीव किया उसने यार, म्यूट करके करता ना। कौन, विकास? सर विकास है। फोन करना पड़ेगा उसको। कर दिया म्यूट मैंने उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डी ओ जो पहले वाली थी वही रखी, डी यहां पर चेंज किया, है ना। अब हम टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 40,000। सो यहां से टाउ वर्किंग बता दो कितना आ रहा है। This will be 67.71 minus 24
0.52. So that is equal to this. That is to be multiplied by 43.19. सर टाउ वर्किंग तो बड़ा ही आएगा ना यहाँ से। 17.72. That 52.26 आ रहा है भाई। 52.26. Yes. So this tau working is greater than tau permissible. Means ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है इसको यहाँ पर। So we need to change this. ठीक है, या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें। ठीक है, either we have to change this or this. तो ये 24.5 तो आप यहां पे रखो। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे लिए फिजिबल होगा। जस्ट कौन सा पैरामीटर को इंक्रीज करने पे हमारे यहाँ फिजिबल होगा? सर डी आउटर। सर डी आउटर बढ़ा सकते डी हैं। आउटर, ठीक है, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दो। तो यू फाइंड आउट डी आउटर, तब डी आउटर यहां से निकालना। 67.71 से बड़ा होगा वो। सर नया निकाल लो, कितना हो जाएगा? यहाँ चेंज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा माइक ऑफ शो हो रहा था बहुत देर से, पर मेरे फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि मेरा माइक ऑन है सर, जबकि लैपटॉप में ऑफ ही शो हो रहा है सर। अभी मैंने ऑन किया है खुद से। यार मुझे तो आवाज आ रही थी आपकी, क्या करूं? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे लैपटॉप में तो वो तो मैंने ऑफ कर दिया था। अच्छा सर, सर पर ठीक है, ऑफ शो हो रहा है। जब आपने इसमें लैपटॉप में देखा ना, यस तब तक मैं बंद कर चुका था उसको। ठीक है, कॉल था सर कॉलेज से। सॉरी सर। चलिए, ओके, नो इशू। प्लीज सॉल्व दिस। नाउ वी नीड टू चेंज दिस, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा सॉरी टाउ सी बढ़ रही है। डी स्मॉल डी बढ़ाने पर बढ़ेगा, क्योंकि देखो रीजन क्या आएगा उसका कि ये डिफरेंस इन दोनों का है ना। यदि ये बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से माइनस अमाउंट ज्यादा हुआ। तो ये पोर्शन जब आप टाउ निकालोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, जिसके कारण सॉरी डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो ये बढ़ेगी स्ट्रेस। तो वी नीड टू आइदर इंक्रीज बी और डी आउटर। इन दोनों में से एक पैरामीटर हमें बढ़ाना पड़ेगा। सर क्या बी? हाँ सर, इंस्टेड ऑफ अगर अपन ये सब एक एक चीज चेक करें, इससे अच्छा अपन जो नए डी की वैल्यू आई उससे अपन डी और ए निकाल ले तो अपना सब सेटिस्फाई हो जाएगा ना। निकाल के देखो ना। एक चीज और ऑब्जर्व करना, हाँ, कि किस पैरामीटर को बढ़ाना है। ऑब्जर्व दिस, कि यदि आप यहां से बी या ए को बढ़ाते हो, हाँ रिमेंबर, ए या बी को बढ़ाते हो, तो उसको देखो ए और बी इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में, और ये बेंडिंग इक्वेशन में है वो। यदि आप बी और ए को बढ़ाते हो तो बी या ए बढ़ेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ेगी। हाँ, ये तो बी को बढ़ाना या ए को बढ़ाना, यानी बेंडिंग स्ट्रेस में फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप डी ओ को बढ़ाते हो तो डी ओ का इंपैक्ट बेंडिंग स्ट्रेस पर नहीं आएगा। ये देखो, मैं यहाँ पे आपको जो समझा रहा हूं वो ये कि डी यदि हमने ये बढ़ा है, जिसके कारण ये टाउ बढ़ गया, तो इसको हमें कम करना है। तो इसको कम करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास में कि बी को बढ़ाएं या डी को बढ़ाएं। क्यों बढ़ाएं? क्योंकि देखो टाउ इज इक्वल टू पी सर बी को बढ़ा भी सकते हैं ना, इंटू डी ओ माइनस डी।
ठीक है, इसको कम करना है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। डिनोमिनेटर ज्यादा कब होगा? जब ये डिफरेंस बढ़ जाए, ठीक है, ये डिफरेंस बढ़ जाए तब ये कम होगा, या यदि इसको नहीं हम चेंज कर रहे हैं तो b बढ़ जाए तो हो जाएगा। यदि हम b को यहां पर इंक्रीज करते हैं तो b बेंडिंग वाली इक्वेशन में है एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में यदि b बढ़ेगा तो सिग्मा b पे इफेक्ट आएगा, तो इसलिए हम b को नहीं बढ़ाते, यहाँ पे हम इस डिफरेंस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, do माइनस डी, इस डिफरेंस को बढ़ा लेते हैं, जिसमें से ये d स्मॉल d आपने बढ़ा दिया है कि ये इतना है 24.52, तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? यदि हम do नया निकाल लें इसके करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग का केस में रखकर, तो हमें नई वैल्यू do की मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि आप में से किसी ने किया हो do बढ़ाकर तो मुझे बता दें कितनी वैल्यू आई do? 69.83। 69.83, ठीक है। सो अब d की वैल्यू हो गई आपकी 69.83 mm। अब ये नई वैल्यू होगी 69.83। अब आप एक काम करिए, इस आपका d हो गया 24.52 mm, d आउटर या d नॉट हो गया 69.83 mm, है ना। a और b आपके पास में है पहले से। अब उन इक्वेशंस में जहां पर d और d आउटर है, उन इक्वेशंस में ये वैल्यू रखो और वर्किंग स्ट्रेसेस निकालो, जैसे ये वाली इक्वेशन, फाइंड आउट टाउ वर्किंग हियर corresponding to न्यू do एंड न्यू d, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग यहां से टाउ निकालना है। तो ये टाउ और ये यहां सेम आएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो a और b, ये a इज हाफ ऑफ b, तो ये ट्वाइस a b के बराबर ही आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी लगभग। बट टेंशन वाली इक्वेशन में रख लो इसको, वहां से सिग्मा टी निकाल लो आप, नहीं ये वाली ये, क्योंकि आपका d, ये स्मॉल d चेंज हुआ है तो ये d आउटर भी चेंज हुआ है, b हम वही रख रहे हैं, तो यहां से सिग्मा टी वर्किंग निकालो। नाउ फाइंड आउट सिग्मा टी वर्किंग, ये निकाल लो आप, कितनी आ रही है बता दो मुझे। So 50. So 50 Newton per mm square. ठीक है, so that is less than the allowable. Yes sir. Okay, so the value is set 50.98 करीबन। So कितनी 50 ना, 50 पॉइंट समथिंग, ठीक है। So 50.0008. ठीक है, 50.0008, this is okay. Now this value sigma t working is less than sigma t allowable, है ना। सिग्मा टी अलाउबल कितनी, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है, मतलब ये जो d नॉट या d आउटर की वैल्यू डी ये एक्सेप्टेबल है, और b की जो वैल्यू है 17.7 वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इस वाली रिलेशन में भी रख लो,
फॉर्क में, हाँ फॉर्क में भी सेम ही आएगी बिकॉज इट इज ट्वाइस है। तो इसका मतलब जो डी की नई वैल्यू वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आपकी 69 जो वैल्यू आई है दैट इज 69.83, दैट इज योर वैल्यू। अभी आपकी डी ओ की वैल्यू 69.83 हो गई, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। So this is all about the design of knuckle joint. These are the references we have used. और कोई किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना हो प्लीज आस्क मी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ।